Hello student, and in continuation with एक practice set 1.3 we'll see the fifth problem. So fifth problem में क्या है? Trapezium PQRS. See, in trapezium PQRS this is given. PQRS trapezium given है, and they have mentioned that AR is equal to 5 AP. Okay, so I will write the solution. What is given? Given में है AR is equal to 5 AP. Now if AR is equal to 5 AP, then we can write AR by AP is equal to 5. Okay. Okay. And then what? AR is equal to 5 AP and AS is equal to 5 AQ. Okay. So next thing is what? This is given. This is what? Given. इसको 1 बोलते. Then AS is equal to 5 AQ. From that one we'll get AS by AQ is equal to 5. Okay. So now see here. This is 1 and this is 2. So what we can say that AR by AP is equal to AS by AQ, we can say. Okay. So from 1 and 2, what we can say that? We can say that AR by AP is equal to AS by AQ. How we can say that? RHS is equal to same, and then LHS will be equal to the same of the 1 and 2. Okay. So we got AR by AP is equal to AS by AQ. See here, AR by AP is equal to what? AS by AQ. So we need to consider triangle. Okay. Triangle, which two triangles we need to consider? We will consider, see, what PQ is equal to SR, and we already know that in trapezium में क्या रहेगा? This side, two sides will be parallel. So PQ will be parallel to SR. Okay. See, I will write here. Since PQ will be parallel to SR. Okay. So what we will get? What we will consider? We will consider two triangle, that is triangle ASR and triangle AQP, right? Now AQP. See in these two triangles. Okay. ASR, angle ASR will be equal to what? It will be equal to ASR will be equal to AQP. Okay. This is what? This is the, okay. This will be the thing. AQP, and what next? See this angle A. See, this is the what? This is the alternate angles. Okay, this is what? These are the, ये क्या है? This is the alternate angle. Because of alternate angle, they are congruent. Okay, just a minute. This arrow we have to first like this we have to draw. Means ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, but keep in mind that ऊपर चढ़ रहे हम, and like this one we have to draw. Okay. So ये समझ में आया. फिर क्या होगा? Angle SAR. Okay, it will be congruent with what? It will be congruent to what we have taken SAR. So it will be QAP. Okay, it will be QAP. It will be what? Angle QAP. This is what? This is the what? This is the vertically opposite angle, right? ना A in between. So it is the vertically. ये क्या है? This is the vertically opposite angle. ये क्या है? This is the vertically opposite angle. तो now by which two? By AA test of similarity, right? ना दो angle test हो गया. So what we can write? By AA test of similarity. By AA test of similarity. What we can write? We can write these two triangles are equal. What? Triangle ASR. It will be similar to what? It will be similar to. This will be similar to what? Triangle AQP. Okay, understand? Triangle ASR, it will be similar to AQP. Okay, how we have taken A? It is the vertically opposite angle, and S will be equal to Q. Okay, that's why ASR, AQP. Remember like that. In every trapezium you will get like this. Okay, because what? This will be the vertically opposite angles. Okay, so if it is like this, so what? We have to write the ratio of sides. Okay, because we want to prove SR is equal to 5AQ. Then from this one what? SR by PQ. Okay, so I will take these two sides, SR by PQ. PQ or QP, you can write anything. Okay, it is equal to what we want? SR by PQ. See what we have? We will take AR by AP. Okay, we will take AR by AP. Okay, you can take AS by AQ also, because AS by AQ or AR, I have taken first last. AR by AP. Okay, AR by AP. Now we know that what is AR by AP? AR by AP is equal to 5. You can take
AS by AQ also. Okay, but that because that is also a 5. Okay, so AR by AP is what? It is 5. Okay, from what? From 2. From 2. Okay, so what you will get? You will get SR by PQ. See, from here I will write SR by PQ is equal to क्या बन गया? 5 बन गया. अगर SR by PQ is equal to 5 है तो SR is equal to क्या होगा? SR will be equal to 5 times PQ. Okay, SR will be equal to 5 times PQ. Understand? कुछ नहीं है, क्या करना है? ट्रापेजियम दिया है. Okay, and the ratio of sides is given. From that one we'll write. Okay, okay, तो उससे हमें ये मिला. See, no need to do like this also. अगर ये है तो इससे भी आप लोग लिख सकते हैं कि two triangles will be this triangle. This is the ratio of the sides. Okay, and one of the triangle is what? Vertically opposite angle. Okay, A. See, from यहाँ से भी लिख सकते हो. And at a time what you have to write? You have to write SAS by S. Two sides का ratio similar है. Okay, ऐसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ क्या आ जाएगा यहाँ पे. ये आएगा एंगल SAR. जस्ट अ मिनट. वो बन जाएगा एंगल SAR इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्ग्रुएंट विथ SAR it will be angle AQP. Okay, फिर you have to write by SAS test of similarity. Okay, by SAS test of similarity what we can write? Triangle this one, triangle ASR is equal to AQP. Okay, I have taken this way. Okay, but you can do by this one also. Okay, and then you can write यहाँ पे हमें CSCP लिखना पड़ेगा. Okay, because of that one we will get this ratio. Okay, but this is the best way. Okay, आप ऐसे कर लो. इसको छोड़ के अगर पहला वाले साइड से किया है तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो. Okay, you can do this one. Next we will see in trapezium ABCD, AB parallel with DC. Right ना, अभी हमने देखा कि trapezium में the two sides will be parallel. So क्या है? We will write consider trapezium ABCD. Okay, उसमें क्या है? AB will be parallel to CD. DC लिखो. Okay, आपको पता है क्या? ये एंगल will be equal to this angle and angle O will be equal to O. Okay, it is the vertically opposite angle. Okay, और फिर उन्होंने क्या दिया है? AC and BD intersect at AC and BD intersect in point O. फिगर इज ऑल्सो गिवन. ओके, अगर नहीं भी दिए तो आप लोग प्लॉट कर सकते हैं. ट्रैपेजियम निकालेंगे AB पैरेलल विद CD. मतलब नाम कैसे लिखेंगे? ABCD. ओके, ऐसे नहीं जाएंगे ABCD. एट दैट टाइम इट विल नॉट कम पैरेलल. ओके, सो हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा. ओके, सो क्या दिया है? AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O. और फिर रेशियोज दिया है. AB इज इक्वल टू 20. A दिया है, CD दिया है, OB दिया है एंड OD दिया है. ओके, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करने पड़ेंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे एंड उसके बाद में रेशियो ऑफ साइड्स दिखाना पड़ेगा. ओके, जस्ट लाइक क्या दिखाना पड़ेगा? क्या क्या गिवन है? AB. सो AB बाय CD इज इक्वल टू OB बाय OD आएगा. ओके, देन वी कैन फाइंड आउट OD. अभी ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि दिस ट्रायंगल AOB और BOA इज इक्वल टू व्हाट? लिख लो AOB इज इक्वल टू हो जाएगा ODC. ओके, राइट ना? इतना हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो वी विल डू लाइक दैट. क्योंकि देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आता है. ओके, तो हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. ओके, सिंस ABCD इज पैरेलल टू A पैरेलल विद D. ओके, ओके, सो व्हाट विल राइट कंसीडरिंग ट्रायंगल. कौन सा कर रहे थे कंसिडर हम? ट्रायंगल BOA. ओके, एंड ट्रायंगल DOC. देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो AOB एंड दैट टाइम COD. ओके, AOB जरा अच्छा लगता है ना? AOB एंड विल राइट COD क्योंकि A एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल होगा, एंगल COD. ओके, सो व्हाट? AOB. ओके, यहाँ पे क्या है? एंगल AOB इज इक्वल टू COD, कॉन्ग्रुएंट विद COD, एंगल COD. व्हाट? OO क्या है? दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड देन व्हाट यू विल गेट? You will get angle BAC
BAO, एंगल BAO ये किसकी इक्वल है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी what I have taken BAO. So what I will get? I will get DOC. Sorry, D A के बराबर C है ना, DC DCO. Okay, right. So what we can say that therefore triangle AOB, it will be similar with triangle COD. Okay, just a minute. By which test? By AA test of similarity, right ना? By AA test of similarity. Okay, आया समझ में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने ये दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए. ओके, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. फिर अभी हम क्या लिखेंगे? नाउ विल राइट द रेशियो ऑफ साइड्स. ओके, सो क्या आएगा? रेशियो ऑफ साइड बाय AA टेस्ट, क्योंकि हमें ये चाहिए ना. सो क्या मिलेगा? विल गेट AB बाय CD. ओके, AB राइट ना, यहाँ से देखो मैं फर्स्ट AB बाय CD इट विल बी इक्वल टू व्हाट? हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से लेना पड़ेगा. OB चाहिए तो क्या आएगा? OB बाय OD. ओके, OB बाय OD. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? हमें OD फाइंड आउट करना है. AB गिवन है, AB इज 20. ओके, देन CD इज 6, CD और DC. OB इज इक्वल टू 15 और हमें OD फाइंड आउट करना है. तो देयरफॉर OD विल बी इक्वल टू व्हाट? OD होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा? 20 इंटू OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15. ओके, सो OD विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20. सो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15. Okay, so this will be what? 4 2 2 जा 4 and 2 3 जा, so 3 3 जा 9 by 2, so you will get 4.5. Okay, so OD will be equal to 4.5 you will get. अंडरस्टैंड? क्या किया? कुछ नहीं किया. ओके, समझ. सबसे पहले देखा कि कौन से साइड्स दी है, उसके हिसाब से ट्रायंगल लिखा. वो ट्रायंगल तो हमें समझ में आता है कि A विल बी इक्वल टू C होगा और O इक्वल टू D होगा, O इक्वल टू O होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो उसके हिसाब से ट्रायंगल सिमिलर दिखा है. ओके, और सिंपली AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, AA टेस्ट में काम हो रहा है इसलिए AA टेस्ट लिखी, फिर उसके साइड्स प्रोपोर्शनेट लिखे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर. ओके, we will move to the next problem. next problem में देखो क्या लिखा है? ABCD is a parallelogram. क्या है ये? मैं रब करती हूँ. ओके, रब अंडरस्टैंड ना दिस वन. देखो अभी क्या दिया है? ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है. पॉइंट इज ऑन साइड BC. ओके, पॉइंट ABCD पैरेललोग्राम. ओके, सो विल राइट गिवन. व्हाट इज गिवन? विल राइट ABCD is a parallelogram. What? ABCD is a parallelogram. Okay. Point E is on side BC. Okay. क्या है? Point E is on side BC, right? ना, point E है on side BC. Line DE intersects ray AB. DE intersects ray AB. AB को extend करके in point T. AB को एक्सटेंड किया. ओके, तो क्या हो रहेगा इसमें? AB पैरेलल विथ व्हाट? पैरेललोग्राम में AB पैरेलल, देखो BC पैरेलल विथ AD एंड AB पैरेलल विथ CD. ओके, AB क्या है? पैरेलल विथ CD है, या DC बोलो, मतलब यहाँ से है तो AB पैरेलल विथ DC. ओके, तो व्हाट? AB वैसे ही है, वैसे ही क्या होगा? AT भी पैरेलल हो जाएगा CD के साइड में. AT विल बी पैरेलल टू व्हाट? इट इज DC. ओके, अभी यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया AT. ओके, या आप DT विल बी योर ट्रांसवर्सल. ओके, ऑन ट्रांसवर्सल T. देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे? DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू T. मतलब मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, राइट? और फिर वी नीड टू राइट द रेशियो ऑफ साइड्स, प्रोपोर्शनेट साइड्स का रेशियो दिखाना पड़ेगा, उससे हम ये प्रूव कर पाएंगे. अभी क्या कर रहे हैं? ऑन ट्रांसवर्सल TD. ट्रांसवर्सल TD में क्या होगा? एंगल B, देखो ये दिस वन एंगल T विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल D होगा, बिकॉज ऑन द सेम लाइन है. तो क्या होगा? हमें कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं? देखो DE BE, DE है, BE है, CE है एंड CE है एंड T, मतलब दिस वन, ये छोटू, ये बड़ा वाला, और ये दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं. वैसे भी वही दो ट्रायंगल बन रहे. तो क्या होगा? तो उसके कारण क्या होगा? देखो BTE क्या होगा?
बी एंगल टी विल बी इक्वल टू डी है. ओके टी देखो बिकॉज दिस वन एंड दिस वन ये सेम रहेगा बिकॉज एक ही लाइन पे ऑन ट्रांसवर्सन है. तो आई विल राइट बी टी ई. देखो मुझे टी के बराबर डी लिखना है ऑन टॉप. ओके एंगल बी टी ई इट विल बी सिमिलर टू व्हाट एंगल सी डी ई. ओके वो क्या होगा एंगल सी डी ई. ओके तो ऐसे ही दिखाना है. देन वी विल कंसिडर करते हैं ट्रायंगल बी टी ई. ओके कंसिडर. ओके ये एक लिख लिया. कंसिडर ट्रायंगल बी टी ई. और कौन सा कंसिडर करेंगे? और कंसिडर करेंगे बी टी ई. देन कंसिडर टी के बराबर डी है तो ट्रायंगल सी डी ई. ओके तो इसमें क्या है? दोनों में ई ई है तो ई क्या होगा? एंगल आई एम राइटिंग बी ई टी. एंगल बी ई टी इट विल बी व्हाट? बी के बराबर सी हो जाएगा. सी सी ई टी इट इज व्हाट? राइट ना? सी राइट ना? ये क्या हो जाएगा? ये वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ वर्टिकली. एक मिनट. बी ई बी राइट ना? ए ई हो गया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये होगा ए. दिस विल बी क्या है? दिस विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ओके ये आ गया समझ में आपको. एंड दूसरा कौन सा है? बी टी. ट्रायंगल बी टी इन राइट ना? ई ई इज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन बी टी ई इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने दिखाया है इज कॉन्ग्रुएंट विद. सॉरी इट अप ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला. बी टी ई इज व्हाट? इट इज कॉन्ग्रुएंट विद सी डी ई. एंगल सी डी ई. ओके तो दो सेम हो गए. ओके तो अभी क्या लिखेंगे? बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के कारण क्या हो जाएंगे? हो जाएगा ट्रायंगल बी टी विल बी सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल बी टी ई इट विल बी सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल सी डी ई. ओके तो अभी इसमें से साइड दिखाने क्या चाहिए मुझे? डी ई बी ई. ओके डी ई बी ई. ओके हमने कंसिडर किया बी टी ई एंड सी डी ई कंसिडर किया. ओके ओके सो व्हाट हमें कंसिडर करना है अभी क्या क्या मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा बी ई बाय सी ई. ओके इससे कंसिडर करके मिलेगा बी ई बाय सी ई. और यहाँ पे क्या चाहिए? देन चाहिए हमें टी ई. सो टी ई बाय डी ई आएगा. ओके राइट ना? देखो ये दो लिखे ना टी ई बाय डी. मैं एक बार यहाँ पे देखती हूँ क्या चाहिए मुझे. ओके सो टी ई मतलब देखो तीन प्रोपोर्शनल साइड्स बनेंगे उसमें से मुझे दो क्या चुनने ये कंसिडर करने. तो बाद में फिर क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्या हो जाएगा वो? राइट ना? ये हो जाएगा बी ई इंटू डी ई. बी ई इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा? इट विल बी टी ई इंटू सी डी. ओके टी ई इंटू बी ई. ओ सॉरी जस्ट अ मिनट. बी ई और सी ई आएगा वही तो मुझे. ओके बी ई सी ई. ओके सो बी ई बाय सी ई इज इक्वल टू क्या होगा? टी ई बाय डी ई. तो ये होगा बी ई इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट? सी ई इंटू टी ई. ओके सो यू विल गेट द प्रूफ. ओके सिर्फ ध्यान रखना है बाकी कुछ नहीं. ओके इजी है ये. सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल्स मुझे दिखाने पड़ेंगे. और सबसे पहले इसमें ध्यान दो कि हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है. जो प्रूव करने के लिए बोला है उसके हिसाब से हमें रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट साइड्स लिखना पड़ेगा. ओके क्योंकि इसमें 3 रेशियो आएंगे. ओके उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं. ओके ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सी AC and BD. This is the 8th problem. AC and BD intersect each other in point P. ओके देखो क्या दिया है? AC और BD दिया है. वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? P पे कर रहा है. ओके और उन्होंने गिवन है AP बाय CP. ओके AP बाय CP मतलब ये ट्रायंगल आएगा ABP ABP और CDP. ओके या ओके और BP बाय DP दिया है. ओके सो हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना पड़ेगा? ओके गिवन ऑलरेडी गिवन है. ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं. ओके ऑलरेडी उन्होंने रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है. क्या गिवन है? गिवन इज व्हाट? AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP. ओके और उसमें क्या है? एंगल PP इज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके एंड एंगल APB राइट ना? इजी है ना? एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट? इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ABP. CDP CPD. ओके CPD अच्छे से लिखो. CPD. ओके CPD. ओके देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स यानी है कि वन एंगल. सो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी.
बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल CDP। ओके सिंपल है, क्या दिया हुआ है उन्होंने, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P को, रेशियो ऑफ साइड्स दिया है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और ट्रायंगल प्रूव करना है कि वो सिमिलर है। रेशियो ऑफ साइड्स NA बाय ऐसे दो साइड्स हो गए, सिर्फ हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक एंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा, वो भी क्या दिखा दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल PP दोनों इसमें है। ओके सो व्हाट ABP सिमिलर हो जाएगा CDP की तरह। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल ABC, 9th प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज क्या है, इन ट्रायंगल ABC गिवन है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC, एक ट्रायंगल ABC गिवन है ABC। ओके थोड़ा सा देखो, ABC इज इक्वल टू पॉइंट D इज ऑन साइड BC, गिवन प्रॉब्लम है, सॉरी क्या सॉल्व है ऑलरेडी, फिगर दी हुई है। ओके मोस्टली आपको फिगर दी हुए ही आएंगे। एक मिनट मैं अच्छे से निकालती हूँ, मतलब उन्होंने दिया हुआ है वैसे दिखना चाहिए, इतना ही मुझे है। ओके सो क्या है पॉइंट D। ओके मुझे सिर्फ दिखाना है कि एंगल A विल बी इक्वल टू D, मतलब इसलिए ये बड़ा है, वो भी ऐसे मुझे दिखाना था। तो क्या है उसमें, ओके BC सच दैट पॉइंट D ऑन B सच दैट एंगल BAC, इसमें गिवन है एंगल BAC इज व्हाट, इट विल बी सिमिलर टू एंगल ADC, कॉन्ग्रुएंट विथ ADC, मतलब एंगल जो A है, देखो यहाँ पे साइन भी दिया है, ये इक्वल, दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन, राइट ना, A इक्वल टू D है। ओके देखो अभी क्या है, एंगल A इज इक्वल टू D है, हमें ओके पहले लगता था कि A कॉमन वाला पूछेंगे, पर A कॉमन है इसमें। ओके इसमें क्या है, ओके और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है देन प्रूव दैट, ओके हमें प्रूव दैट करना है देन प्रूव दैट। ओके प्रूव दैट क्या करना है देखते हैं, प्रूव दैट करना है हमें CA स्क्वायर। ओके मतलब दोनों में CA साइड आएगा, ऐसा ही ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर मतलब ये साइड आनी चाहिए दोनों में, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके तो देखो अभी एंगल A इक्वल टू एंगल D है। ओके तो हम क्या कंसीडर करेंगे, CA साइड आएंगे दोनों में ऐसे। ओके सो ABC कंसीडर करेंगे। ओके ट्रायंगल ABC, ओके ABC तो A लिखा ना हमने, A से के बराबर क्या है, D है, एंड ट्रायंगल ABC। ओके सो ट्रायंगल DAC। ओके जस्ट मिनट, A के बराबर क्या है, D है, तो A की जगह मैंने D लिखा, C लास्ट में चाहिए, सो ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट DCA। ओके क्या बचा, वो बचा एक मिनट। ओके सो हम कंसीडर करेंगे ABC एंड DAC। ABC अगर मैं ABC जस्ट मिनट A करती हूँ कंसीडर, तो अदरवाइज आई कैन गो फिर ABC एंड DAC। ओके मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे वैसे लिखने की वो कोई जरूरत नहीं है, इफ आई कंसीडर ट्रायंगल ABC A के बराबर DAC, राइट, मैं ये कंसीडर कर रही हूँ। देखो यहाँ पे A तो A कंसीडर किया ABC। ओके फिर नेक्स्ट टाइम कंसीडर करें DAC, क्यों, क्योंकि CA स्क्वायर चाहिए, मतलब CA क्या आना चाहिए, दोनों में चाहिए। ओके और A के बराबर D है, फिर जाने तो ये फिर से A आ रहा है, बिकॉज ये हमने छोटू वाला ट्रायंगल किया, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया 1 और ये 2 छोटू वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। अगर ABC एंड ट्रायंगल DAC कंसीडर करें तो उसमें क्या है, गिवन है BAC इज व्हाट, BAC इज कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट, BAC इज कॉन्ग्रुएंट विथ DAC एंगल ADC गिवन है। ओके और दोनों में क्या है, एंगल C इज कॉमन। ओके सो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या है, ABC। ओके A ओके सो व्हाट आई कैन राइट A के बराबर D है, तो DAC। ओके दो राइट ना, ABC इज इक्वल क्या हो जाएगा, राइट ना, सो जस्ट मुझे C कॉमन दिखाना, मैं राइट ACB क्या बचा, ACB बचा। ओके जो कॉमन वो है वो
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी तो बराबर है DCA, राइट ना, DCA। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि ए यहाँ पे ए इधर आ रहा है, यहाँ पे ए रहा है, क्यों, बट ए इज इक्वल टू ए है ही नहीं, ए इज इक्वल टू डी है, क्योंकि हमने एक बड़ा वाला ट्रायंगल किया कंसिडर किया और एक छोटा वाला कंसिडर किया, पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सी है। ओके ओके, आप इसको BCA भी लिख सकते थे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये गिवन है और ये क्या है, इट इज कॉमन है। ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट बाय, राइट ना, कॉमन है दोनों में। ओके, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, BAC। ओके, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, ABC और DAC लिखना है ना, ABC विल बी सिमिलर टू व्हाट, ABC हो जाएगा सिमिलर DAC। ओके, अब भी सिर्फ क्या करना है, प्रूव क्या करना है वो देखो और सॉल्व करो। ओके, CA चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट AC बाय DC। ओके, देखो ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट वाला लिखा AC, यहाँ पे लिखेंगे AC बाय DC इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या चाहिए, CB चाहिए, तो मैं लिख रही हूँ BC या CB लिखो, अपोजिट लिख रहे हैं, CB तो यहाँ पे लिखो BC बाय ये क्या हो जाएगा, लास्ट का AC हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा, AC इंटू AC इज व्हाट, इट इज BC इंटू DC। ओके, तो ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC को CB लिखो, CB इंटू CB। ओके ओके, तो ये मिल जाएगा, आया समझ में। सिर्फ यहाँ पे क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, और दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करना हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, CA स्क्वायर, यानी दोनों में CA चाहिए। अगर AD स्क्वायर चाहिए होता तो हमने दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ता, A एंड A कंसीडर करना पड़ता, वो एक्चुअली होता ही नहीं, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। तो ओके, जो पूछा है उसके हिसाब से कंसीडर करके हमें करना है। ओके, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।